Good afternoon, kids. Hi, everybody. How are you? So, today we are going to continue your poem Don't Give Up, which we did before your half yearly examination. So, we have a little left from the poem. I had told you about what a poem is. We had spoken about stanza. What is a stanza? See, we have three stanza in your poem. How many stanzas? Three stanza. Now I am going to read about the last stanza. Okay बच्चों? So आज हम आपके जो डोंट गिव अप पोएम है उसका जो आखिरी स्टैंजा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आज हम आपके पोएम के आखिरी स्टैंजा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो आखिरी आखिरी चंद है, यानी कि जो आखिरी चंद है कविता में, जो आखिरी चंद है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने क्या पढ़ा था डोंट गिव अप पोएम में? कि आपके जो टेक्स्ट बुक में आपने देखा था एक चित्र बना रखा है, देयर इज अ picture attached to the poem. What is the picture? There are children climbing up a mountain. There are so many mountains and there is also snow, no? There's a lot of snow. Snow क्या होता है बच्चों? बर्फ. So there is a lot of snow. Okay, there's lot of snow in the picture which is attached to your poem. यानी कि आपके जो कविता है वहां पे एक पिक्चर दिया है ना, एक चित्र दिया है। वहां पे क्या है? वहां पे बच्चे हैं। there are children. Who are there? There are children. Children क्या कर रहे हैं? They are climbing up a mountain. They are climbing up a mountain. up, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। They are climbing up a mountain. They're climbing up a mountain. Yeah, to reach the top. To reach where? To reach the top of the mountain. So, to reach the top, they are climbing up. Okay, so this is about the poem. But इस पोएम में वो सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं, they are not only talking about them climbing up a mountain, but they're also telling about life. What are they telling about life? कि लाइफ एक पहाड़ की तरफ है। जिंदगी is full of mountains. is full of mountains. mountains माने कठिनाइयाँ, जो डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स होते हैं जिंदगी में, डिफिकल्टीज होती है जिंदगी में। उसी तरह पहाड़ की तरह होती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। समटाइम्स वी गो अप, समटाइम्स वी गो डाउन। लाइफ इज up and down, up and down, up and down. That's how life is. कभी आप अच्छे रहते हैं, you are in a happy mood. Some days you are in a very sad mood. Okay, some days you're very happy and some days you're very sad. So some days you are going high up and some days you are going down. Okay? So, what we understand from the poem, don't give up. What do we understand from the poem, kids? क्या समझ में आता है कि जिंदगी पहाड़ की तरह है, चढ़ाव भी होता है और उतराव भी होता है। There is an up and a downhill also. And what we should do if life is like that? We should keep on going. हमें आगे बढ़ते जाना है. We should keep on गोइंग, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो मैं आपके साथ एक बार कविता और एक बार रिसाइट करूंगी। क्या करूंगी बच्चों? रिसाइट। रिसाइट यानी कि व्हाट डज रिसाइट मीन? मैं वापस उसको पढ़ूंगी। ठीक है बच्चों? आई विल रिसाइट द पोएम टू यू पीपल। ओके, लेट्स रिसाइट। मैं आपको वापस सुनाऊंगी। तो रिसाइट का अर्थ है सुनाना। ओके, रिसाइट। लेट मी रिसाइट द पोएम विथ यू। लेट्स स्टार्ट अगेन। डोंट गिव अप इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। Life is full of mountains. Some are big and some are small.
but if you don't give up, you can overcome them all. हमने यहाँ तक पढ़ा था ना बच्चों? Now we are going to read the last stanza. What does it say? So keep on going. तो आगे बढ़िए. So keep on going. आगे बढ़ते जाइए. Try. कोशिश कीजिए. Try not to stop. Try. कोशिश कीजिए. रुकना नहीं है. Not to stop. Try not to stop. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. तो अगर आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? If you keep on going, अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, if you keep climbing up, you can reach the top. You can reach the top here and you can see a beautiful view. क्या आप लोगों ने have you all climbed up a mountain? Has any one of you climbed up a mountain? And जब आप पहाड़ चढ़ जाते हैं, when you climb up the mountain and you look at the beautiful greenery around you, greenery यानी कि जो सुंदरता है, जो आपके आसपास जो पहाड़ है, फॉरेस्ट है, वो सब आप देख पाते हैं, प्रकृति को अच्छी तरह देख पाते हैं. तो when you reach the top, you are able to see the beauty of life. और आप चढ़ते वक्त भी आप लाइफ का जो बहुत अच्छे अच्छे चीज है, ब्यूटीफुल थिंग्स है, आप देख सकते हैं. तो आप चढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. कभी कभी रुकावटें आएंगी. देयर विल बी मोमेंट्स दैट यू हैव टू स्टॉप, बट स्टॉप एंड देन अगेन स्टार्ट ट्राइंग. ओके, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है हमें. सो दिस इज व्हाट द पोएम सेज, डोंट गिव अप. अभी अगर आपको पूछा गया हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, अगर आपसे पूछा गया, if somebody asks you who is the poet of the poem, यानी कि कौन है कवि. सो क्या पूछा जाएगा आपसे? पोएम के जो कवि है, कविता के जो कवि है, वो कौन है पूछा गया. तो ये आपको कवि का नाम बताना है. सो वी हैव टू टेल द पोएट्स नेम. ओके, बट हियर हु इज देयर? देयर इज नो वन. अनोनिमस है. अनोनिमस लिखा गया. व्हाट इज इट? अनोनिमस. अनोनिमस का अर्थ में गुमनाम, कोई भी नाम नहीं है. ठीक है बच्चों, अनोनिमस का अर्थ है गुमनाम, कोई भी नाम नहीं दिया गया. किसने ये कविता लिखी है? हु हैज रिटन द पोएम? वी डोंट नो. वी डोंट नो हु हैज रिटन दिस पोएम. दिस पोएम किसी ने भी नाम नहीं दिया है. No one has mentioned their name. So that means this poem is written by a person and they have chose not to tell the name anonymous. So there is a poet to the poem, but we don't know the name. तो जब हमें नाम नहीं पता होता है, हम क्या लिखते हैं? Anonymous लिखते हैं. क्या लिखते हैं बच्चों? Anonymous. What do we write? Anonymous. So this is about your poem, Don't Give Up. ठीक है? You all understood? Yes? Very good. So let's repeat the poem once again and let's move forward. So what they're saying? Don't give up. If you keep on going and never stop, you can keep on going and make it to the top. Life is full of mountains. Some are big, some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. Then, so keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Very good. Very good. So what and all we have learned today? We have learned what is a poet. कौन है या poet क्या है? कौन है बताइए? Poet poem के कवि है. Who wrote the poem? Okay, so we understood who is a poet, but do we have a poet's name here? We don't have a poet's name here. So what have we to write?
anonymous, यानी कि गुमनाम. Okay, so we understood the poem. Very good, kids. Now we will do the book back questions related to the poem. Okay, यानी कि जो आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो भी क्वेश्चंस पूछे, प्रश्न पूछे, उनका उत्तर ढूंढ निकालेंगे. तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट्स एन एक्सरसाइज. इट्स कॉल्ड एज क्वेश्चंस. व्हाट इज कॉल्ड? जब प्रश्न जो पूछते हैं उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चंस. आंसर ऑल द क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न. प्रश्न जो पूछा गया है आपसे उसको कहते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि सवाल जो भी पूछा जाए आपसे, आपसे एक सवाल पूछा जाए तो आपको उसका उत्तर देना है. तो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आना है कि हमें सवाल का जवाब देना है. We have to answer the questions. तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए. जब एग्जाम में ऐसे लिखा हो गया इंग्लिश में, so you have to remember questions means सवाल. ठीक है बच्चों? नो, आपका जो पहला सवाल है, आपका जो पहला सवाल है बच्चों, क्या है? देखें. Where are the children going? तो वेर का मतलब क्या है? कहाँ. आर द चिल्ड्रन गोइंग? कहाँ बच्चे जा रहे हैं? वेर आर द चिल्ड्रन गोइंग? हमने तो देखा था ना आपके एक चित्र में, जो आपके पोएम के चित्र में. there is a picture attached to the poem, isn't it? What did we see? The kids are climbing up a mountain. So what do you write? The answer would be, ऐसे लिखेंगे आप बच्चों आंसर को. देखिए, द चिल्ड्रन, ऐसे ही लिखेंगे. देखिए, यहाँ पे द चिल्ड्रन लिखा है ना. द चिल्ड्रन आर गोइंग. क्या करेंगे? द चिल्ड्रन आर गोइंग टू. टू यानी कि किस दिशा में जा रहे हैं? टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. क्या लिखेंगे बच्चों आप? वेर आर द चिल्ड्रन गोइंग. आप यहाँ देखेंगे तो वेर का मतलब क्या है? वेर का मतलब कहाँ. वेर का मतलब कहाँ. ठीक है. वेर आर द चिल्ड्रन गोइंग? द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. तो यहाँ पे चिल्ड्रन आर गोइंग का स्पेलिंग यहाँ पे ही है. देखिए, द चिल्ड्रन ऐसे लिखेंगे, आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेर यानी कि कहाँ जा रहे हैं. ठीक है. वेरी गुड. ओके, नाउ विल गो टू द कहाँ जा रहे हैं. तो वेर का मतलब है कहाँ. वेर आर द चिल्ड्रन गोइंग? द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. माउंटेन का स्पेलिंग लिख लीजिए, MOUN टेन. TAIN. माउंटेन. माउंटेन. ओके बच्चों. वेरी गुड. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, आपने लिख दिया है ना. वेर आर द चिल्ड्रन गोइंग पूछा तो आपको क्या लिखना है? द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. वेरी गुड. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीबॉडी कम ऑन. चलो चलो, लेट्स गो, लेट्स गो. In the poem also they are asking to keep on going, and we are also keep on going ahead. Very good. Now the next question is B. What does the word, what does the word mountain mean? Mountain mean in the poem. Poem. Okay?
What does the word mountain mean in the poem? What का मतलब क्या? क्या है अर्थ? तो माउंटेन का जो अर्थ है, पोएम है, माउंटेन का जो सही अर्थ है वो है पहाड़. ओके, माउंटेन मीन्स इट्स अ हिल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट व्हाट डज द वर्ड माउंटेन मीन इन द पोएम? इस कविता में माउंटेन का क्या सही अर्थ है? हमने तो इसके बारे में पढ़ा था ना बच्चों, कि माउंटेन का क्या अर्थ है. तो आप कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? क्या है यहाँ पे इस पोएम में? माउंटेन का जो अर्थ है, जो लाइफ में जो कठिनाइयां आती है, द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. ओके, सो यू विल राइट इट लाइक द वर्ड mountain, the word mountain mentioned in the poem means लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिखते हैं, talks about the difficulties we face in life. तो इसका क्या अर्थ आ रहा है बच्चों? क्या क्या, क्या लिखा है? द वर्ड ऐसे लिख रहे हैं, द वर्ड माउंटेन मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कि मेंशन माने वहां पे बोला गया है, मेंशन्ड इन द पोएम टॉक्स अबाउट में बात कर रहा है, अबाउट द डिफिकल्टीज, कठिनाइयां, वी फेस इन द लाइफ, जो हम जिंदगी में फेस करते हैं, रोज रोज हम इसको देखते हैं, फेस करते हैं, मुकाबला करते हैं. ठीक है, सो द वर्ड माउंटेन मेंशन इन द पोएम टॉक्स अबाउट द डिफिकल्टीज वी फेस इन लाइफ. ओके, राइट, यू गॉट द आंसर. लिख लीजिए आपके नोटबुक में बच्चों जल्दी से. वेरी गुड, वेरी गुड किड्स. लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड. नो, अब आगे बढ़ रहे हैं towards the next question. Okay, we are keep on going, like how the children are keep on going. Okay, what is the third question? Complete the lines. Complete the lines. Pehla, the first one is some are big and भरने को कहा है. और दूसरा जो क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन मेक इट. So what is here, kids? So you remember what we said? Which part of the poem is the second stanza में आ रहा है ना? Life is full of mountains. Some are big and some are small. तो यहाँ पे क्या आएगा? Some are big and some are small. यहाँ पे बिग एंड स्मॉल और ऑपोजिट्स, विलोम है बच्चों. ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? यू कैन मेक इट. तो ये लास्ट स्टैंजा में जो आता है, जो आखिरी स्टैंजा पे आता है, वो है ये, यू कैन मेक इट टू द, सही बोला आपने, टॉप, माउंटेन के ऊपर चढ़ पाओगे. यू कैन मेक इट टू द टॉप. ठीक है, दिस इज हाउ यू कंप्लीट द लाइन्स. ओके, लिख लीजिए. अगर आपने कविता जो एक्शंस मैंने आपको बताया है, वॉट एवर एक्शंस आई हैव टॉट यू, इफ यू प्रैक्टिस इट ओवर एंड ओवर अगेन, तब आपको याद रहेगा और आप लिख पाएंगे. Okay, you will be able to remember and write. So what did I use? What words I use? Remember. Remember यानी कि याद रखना. So whenever I am mentioning a word, आप उसका अर्थ पास में लिख दीजिए, ताकि you can use it in your daily life. Okay, you can use it. So what did I say? You can remember and write. Write यानी कि लिखना, and remember यानी कि याद रखना. Okay बच्चों, so always write the vocabulary I'm trying to teach you here. So
you can speak well. When you speak well, you will feel confident. आप अगर अच्छा बात करेंगे आपको अच्छा confidence मिलेगा बच्चों. Okay? Remember and write other two words today we learned. Okay? Now you've written this. आप लोगों ने ये सब लिख लिया है ना? Now we'll go to the next question. Okay? There are total 4 questions. We have finished the first 3 and now we are going to go to the next. Okay? So next question is, what do you learn? What do you learn from this poem? इस कविता से आप क्या सीख रहे हैं? वॉट डू यू लर्न? लर्न यानी कि क्या ज्ञान पा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं. लर्न फ्रॉम दिस पोएम यानी कि ये कविता. ओके, तो वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम करके आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप लोगों ने क्या सीखा? वॉट डिड यू लर्न? वॉट डिड दैट पोएम टीच यू पीपल? यस, वेरी गुड. वी लर्न टू नेवर गिव अप. तो टू नेवर गिव अप. एंड क्या बोला था? कभी भी हार नहीं मानना है. एंड नेवर नेवर स्टॉप. कभी भी रुकना नहीं है. एंड ट्राई. कोशिश कीजिए. ट्राई टू कीप ऑन गोइंग till we reach our goal. That is, क्या होता है? That is, make it to the top. ठीक है बच्चों, तो क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पे? वी लर्न टू नेवर गिव अप. कभी भी हार नहीं मानना है. एंड नेवर स्टॉप. कभी भी रुकना नहीं है. और हमें क्या करना है? कोशिश करना है आगे बढ़ने का. कीप ऑन गोइंग टिल वी रीच आवर गोल. गोल यानी कि लक्ष्य, जहां पे आपको पहुंचना है, आपकी जो मंजिल है, लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है. गोल यानी कि लक्ष्य. तो जो गोल का अर्थ होता है उसका अर्थ क्या है? लक्ष्य. टू रीच आवर गोल. हम हमारे लाइफ में एक एक गोल रहता है. ठीक है. सो वी वांट टू finish our fifth standard class with very good marks. We want to get good marks, and that is our goal now. So our goals keep changing. किसी किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को टीचर. Some people have goal and passion to become a police officer or a teacher. So some people want to become a doctor, right? So we all have our goal and aspirations. So our lakshya yani ki our goal. So what they are saying, the poem is saying, never give up. कभी भी हार नहीं मानना है. एंड नेवर स्टॉप. कभी भी रुकना नहीं है. एंड ट्राई टू कीप ऑन गोइंग. और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. टिल वी रीच आवर गोल. ताकि हम हमारा लक्ष्य तक पहुंच जाए. दैट इज मेक इट टू द टॉप. ठीक है. वेरी गुड. नाउ दैट यू हैव रिटन दिस, आई विल टेक यू टू the next part. We have a little game together we'll play. Okay, and I will teach you certain things. आपको opposite सिखाती हूँ अभी. Opposites. Okay, इसके बेसिस पे हम एक गेम भी है. Okay, तो अभी opposites में आपके जो बुक बैग में है वो सिखा दी हूँ. और उसके बाद और थोड़े opposites भी सिखाऊंगी. Okay, opposites. एक मिनट बच्चों. पहला जो ऑपोजिट है, टर्न ऑन. दूसरा जो है, स्विच ऑन. तीसरा जो है, पुट ऑन. चौथा जो है वो है लाइट. एंड फिफ्थ वन इज अ पुट इन. ओके, तो व्हाट आर द ऑपोजिट्स ऑफ दिस? इसका जो विलोम है, वी हैव टू फाइंड द
विलोम ऑफ इट। टर्न ऑन का मतलब क्या है? व्हाट डज टर्न ऑन मीन? इट मीन्स टर्न ऑन माने खोलना, कुछ चीज को ऑन करना। टर्न ऑन जैसे नल का, वी टर्न ऑन द टैप। ओके। एंड टर्न ऑफ, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? टर्न ऑन का ऑपोजिट ऑफ है ना बच्चों? तो टर्न ऑफ। टर्न ऑन, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ टर्न ऑन? टर्न ऑन ऑपोजिट इज टर्न ऑफ। उसी प्रकार, like that itself, switch on, switch on we do it for the light। okay, so switch on, तो switch on का opposite क्या होगा? switch off। ठीक है बच्चों? स्विच ऑन, स्विच ऑफ। ओके, स्विच ऑन माने ऑन कर दीजिए और स्विच ऑफ माने ऑफ कर दीजिए। ओके, चालू करना और बंद करना। ओके, पुट ऑन माने पुट ऑन योर क्लोथ्स। पुट ऑन योर क्लोथ्स, ऑल ऑफ यू पुट ऑन योर क्लोथ्स। पुट ऑन योर कोट। पुट ऑन माने कपड़ा पहनना। पुट ऑन। ओके, सो पुट ऑन और कपड़े उतारने के लिए क्या कहते हैं इंग्लिश में? इट्स कॉल्ड एज टेक ऑफ। सो पुट ऑन का ऑपोजिट है टेक ऑफ। द ऑपोजिट ऑफ पुट ऑन इज टेक ऑफ। ओके किड्स, नाउ लाइट। लाइट का ऑपोजिट है डार्क। बट यहाँ पे जो लाइट आपको कहा गया है, उस लाइट का ऑपोजिट डार्क भी हो सकता है और दूसरा पुट आउट भी हो सकता है। यानी कि बत्ती जलाओ, लाइट इट, तो पुट आउट। ओके, तो लाइट इट और उसका हो सकता है पुट आउट। पुट आउट माने बुझा दो, बुझाना, और लाइट मने जलाना, प्रकाश लाना। ठीक है, सो लाइट इट का अर्थ होता है पुट आउट। लाइट का अर्थ डार्क भी हो सकता है, ऑपोजिट डार्क भी हो सकता है। लाइट्स ऑपोजिट कैन बी डार्क और लाइट्स ऑपोजिट कैन ऑल्सो बी पुट आउट। ओके, एंड पुट इन का अर्थ है अंदर डालना। अंदर डालना का ऑपोजिट क्या होगा? बाहर निकालना, नो? सो पुट इन, टेक आउट। पुट इन, take out. So we put it in and we take it out. Okay? So take out. ये लिख लीजिए. Please write it down. And after this, we'll play a game. Quickly write it down. Write it down. Come on. Are you ready to play a game? Come on. I hope you have written it. Now we are going to play a game. Okay, kids? Come on. Now I'm sharing the screen. Okay, can you see the screen, everybody? Yeah? Very good. 1 minute. I'll stop sharing and share again. Okay, I'm sharing the screen again. Sorry for the delay, kids. Okay, now you can see the screen, right? Very good. Okay, now what do we see here? We see stop. What is the opposite of stop? Is it switch off? So just put out, small, bottom, turn off, empty, take out, difficult, always, take off या go. Stop का opposite, stop का मतलब क्या है? What is the meaning of stop? Stop मैंने रुकना and go मैंने आगे जाना. So stop and go. Very good. See here, here is put in का opposite out है. तो अगर मैंने put in को इधर डाला, would it be correct? Put in का अर्थ क्या है? What does put in mean? In general, it means to put it in. यानी कि to put it in, अंदर डालना. Put out माने वो सही नहीं है. Put in का opposite क्या होगा? बाहर निकालना. ठीक है? So put in का opposite will be take out. Very good. Put in, take out. Right, kids? Now what is full? आपके कविता में क्या कहा? Life is full of mountains. So full माने भरा हुआ. What does full mean? It means भरा हुआ. Now let's find the opposite of full.
small is nahi, bottom nahi hoga. It's not full. Here look, empty, full, empty, right? Empty का मतलब क्या है बच्चों? खाली. No, we know the opposite of big. Big, the opposite of big is small. We learned it in the poem, no? Some are big and some are small. Now put on, what did I teach you? What does put on mean? Put on means put on your clothes. आपके कपड़े पहनिए. तो कपड़े निकालने के लिए बोलते take off your clothes or take off your coats. So put on's opposite is take off. Switch on, switch off. You all know that. Very good. Okay. Light, what did I tell you? What is the opposite of light? We discussed this. Light यानी कि प्रकाश, रोशनी. तो लाइट का अर्थ हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, विलोम हो सकता है, डार्क. But is there any dark here? There's put out, there's bottom, there's turn off, there's difficult and always. So what does it mean? यहाँ पे light का अर्थ है. What is the meaning of light here? It means that he is lighting the lamp or he is lighting. So light and put out. Put on यानी कि बुझाना. Okay, very good kids. Now, what is the opposite of never? Come on, tell me. Okay, we'll do this. Top, bottom, right? Top, bottom. Top मने ऊपर, bottom मने नीचे. And this is easy. And here, where is easy का easy मने आसान. And कठिन कहाँ है? Turn off all difficult. Easy का opposite होता है difficult. Easy का जो विलोम है, it's called difficult. Okay? And now let's go on. Turn on यानी कि turn on the tap. Now if you want to off the tap, what do you say? Turn off the tap, opposite. So turn on and turn off. Very good kids. And now look here what we have got. Never. Never माने कभी भी मत करना. ऐसे कभी भी बात मत करो. So never talk like that to me. Never do that. Never jump up from a very tall building. You will get hurt. Never do that. Never meaning kabhi bhi. So what is opposite of never? It means always. Hamesha. So never's opposite is always. Oh. Hamesh. Always. Never. Always. So what are the new opposites other than what I taught you? Big and small. Top, bottom, full, empty, easy, difficult, never's opposite is always, stop is go. Okay, so these are the new opposites which I have taught you from the poem itself. Okay, so now let's end it. Let's finish the game. Yeah, we are going to submit the answers. Come on, let's see if you have done it well. Wow, all of you have answered very well. Good job, everybody. Now, with this, we end today's class. Meet you next time. Until then, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat.